Hello everyone, how are you? I hope you all are well. Today we'll study Know Then Thyself, written by Alexander Pope. This is my first lecture for online student. BA second year, third sem. Know then thyself. Know then thyself by Alexander Pope. Alexander Pope 1688 to 1744. Know then thyself means कि अपने आप को जानो. Know about yourself. Thyself means yourself. This poem is an extract from Pope's famous poem Essay on Man. In this extract, the Pope tries to make a study of man. He says that it is useless for man to explore into the ways of God. The mysteries of God are beyond the scope of human intellect. Therefore, the proper study of mankind is man himself. Man is the greatest enigma on this earth. He is a mixture of opposites. He has in him godly as well as beastly qualities. It would be enough for man if he was able to analyze this wondrous creature. Pope calls this creature the glory, jest and riddle of the world. This is the introduction of the poem. अलेक्जेंडर पोप कहता है कि अपने आप के बारे में जाने, इंसान भगवान के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, कि भगवान के जो रहस्य हैं, द मिस्ट्रीज ऑफ गॉड बियॉन्ड द रीच ऑफ मैन, मनुष्य की रीच से बाहर हैं, पहुंच से बाहर हैं, उसके रहस्य उसको जानने की ज़रूरत नहीं है. इसलिए अगर इंसान को जानना ही है तो वो अपने आप के बारे में जाने, ना कि भगवान के बारे में. और अलेक्जेंडर पोप कहता है कि मनुष्य इस संसार में सबसे बड़ी पहेली है जिसे सुलझाया नहीं जा सकता. वॉन्डर्स क्रीचर है, वो अजीबोगरीब प्राणी है. पोप अलेक्जेंडर पोप इसलिए कहता है मनुष्य के बारे में, इंसान के बारे में, द ग्लोरी, जेस्ट एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड, कि वो शान भी है इस संसार की, जेस्ट भी है, मजाक भी है, रिडल ऑफ द वर्ल्ड, और पहेली भी है जो सुलझाई नहीं जा सकती. द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. एग्जाम में आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखना होगा, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एंड आफ्टर दैट एक्सप्लेनेशन. फर्स्ट स्टैंजा इज नो देन thyself, presume not God to scan. The proper study of mankind is man, placed on this isthmus of a middle state, a being darkly wise and rudely great. Reference to the context. Reference to the context. रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. सभी स्टैंजाज का एक ही लिखना है, वो सेम होता है. नो देन thyself के जितने भी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट हैं वो सेम होगा. कैसे लिखना है? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम नो देन thyself, विच इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पॉप्स फिलोसॉफिकल पोएम Essay on Man. Here the poet shows what a curious riddle man is. कि ये जो पंक्तियाँ हैं, लाइन्स हैं, नो देन thyself में से ली गई है, जो पॉप के फिलोसॉफिकल पोइम है Essay on Man, उसमें से ये पोइम ली गई है. और यहाँ पर कभी इंसान को एक अजीबोगरीब पहेली कहता है. कैसे लिखना आपने? These lines
have been taken from Know Then Thyself, which is an extract from Pop's philosophical poem Essay on Man, Essay on Man, philosophical poem Essay on Man. Here the poet shows what a curious riddle man is. Reference to the context. These lines have been taken from Know Then Thyself, which is an extract from Pop's philosophical poem Essay on Man. Here the poet shows what a curious riddle man is, and after that explanation. Explanation of this stanza. In these lines, the poet says that the proper study of mankind is man himself. Man should not try to scan the ways of God. The mysteries of God are beyond the scope of the human intellect. Therefore, man should concentrate himself on his own study. The poet says that man is a curious paradox. He stands on the isthmus between divinity and animality. He has in him the elements of a god and beast as well. He is a mixture of opposites. He is crude as well as civilized. In the words of Pope, he is darkly wise and rudely great. Man is indeed a great riddle. एक्सप्लेनेशन में क्या कहते हैं अलेक्जेंडर पोप कि इंसान को भगवान के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है. देयर इज़ नो नीड टू नो अबाउट गॉड. उसे सिर्फ अपने बारे में जानने की ज़रूरत है. वह अपने बारे में जाने क्योंकि भगवान के जो रहस्य हैं वो उसकी पहुंच से बाहर हैं. और मनुष्य एक क्यूरियस पैराडॉक्स है, विरोधाभास है उसके अंदर. वो अपने आप को एस्थमस मीन्स प्लेस्ड ऑन दिस एस्थमस ऑफ अ मिडल स्टेट. एस्थमस मीन्स कि ज़मीन के जब दो बड़े टुकड़े आपस में जब मिलते हैं उसे एस्थमस कहते हैं. संयोग भूमि. दैवीय भी है वो और जानवर भी है. कभी कभी बहुत अच्छे काम करता है तो बहुत अच्छा व्यक्ति बन जाता है, लेकिन कई बार बहुत बुरे काम भी करता है जिसके काम से हम जानवर भी कहते हैं. उसके अंदर भगवान के और जानवर दोनों के गुण हैं, दोनों का मिक्सचर है. वो क्रूड भी है, सिविलाइज्ड भी है, असभ्य भी है, सभ्य भी है, बुद्धिमान भी है लेकिन मूर्खता भरे कार्य भी कर देता है. रूडली ग्रेट, महान होते हुए भी अनजान बना रहता है. मैन इज़ इंडीड अ ग्रेट रीडर. इसलिए मनुष्य एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ी पहेली है. दिस वॉज द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ नो देन थाईसेल्फ बाय अलेक्जेंडर पोप. सेकंड स्टैंजा इज विद टू मच नॉलेज फॉर द सेप्टिक साइड, विद टू मच वीकनेस फॉर स्टोइक प्राइड, he hangs between in doubt to act or rest, in doubt to deem himself a god or beast. A reference to the context. These lines have been taken from Know Then Thyself, which is an extract from
Pope's philosophical poem Essay on Man. Here the poet shows what a curious riddle man is. And after that explanation, man has a great deal of knowledge, yet he remains skeptic. His knowledge is not perfect. He has so much knowledge that he cannot be called a skeptic, but he is so much full of doubts that he cannot be called enlightened. He has great power over material things, but he is a slave to his passions. He is too weak to be called a stoic. Man ever remains in a state of uncertainty. He hangs in doubt whether he should lead a life of action or of rest. He does not know whether he should consider himself a god or a beast. Man is indeed a big riddle. He can't be described by any single name. एक्सप्लेनेशन क्या है इसमें कि मनुष्य के पास बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन फिर भी उसको डाउट रहते हैं बहुत सारे, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानता है, इंटेलेक्चुअल पर्सन मानता है, लेकिन संदेहों से सेप्टिक है वो। सेप्टिक मीन्स जो व्यक्ति धार्मिक सिद्धांतों में विश्वास करता है, दैट पर्सन हु बिलीव्स इन रिलीजियस बिलीव्स। बहुत सारे इसके अंदर डाउट हैं, इसलिए हम उसे एनलाइटन तो नहीं कह सकते, वो बौद्धिक नहीं है। मटेरियल थिंग्स के ऊपर राज करता है, बहुत बड़ी ताकत है उसकी, भौतिकवादी चीज़ों का मालिक है, लेकिन ऐसे यूज़ करता है, उनका यूज़ ऐसे करता है कि वो उनका अब स्लेव बन गया है, उनका नौकर बन गया है, दास बन गया, गुलाम बन गया है, और फीलिंग्स का वो स्लेव बन गया है, दास बन गया है, भावनाओं का दास बन गया है, अनसर्टेनिटी में रहता है, तय नहीं कर पाता ये करूं या ये करूं, डाउट्स, संदेह में लटका रहता है कि वो काम करे या रेस्ट करे, आराम करे। कई बार हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि काम करें या आराम करें, समझ नहीं पाते, अपने आप को नहीं समझ पाता कि वो अपने आप को भगवान माने या राक्षस या जानवर। वास्तव में मनुष्य एक मैन इज इंडीड अ बिग रीडल, बहुत बड़ी पहेली है। ही कांट बी डिस्क्राइब्ड बाय एनी सिंगल नेम, और एक नाम से तो वो कभी भी उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। Thank you very much for watching this video. If you have any kind of query, please comment. I will try my best to remove your queries. Thank you very much.